میرا نام فردوس ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میں یونیورسٹی میں جاتی تو وہاں ایک لڑکا ہر روز مجھے تنگ کرتا اور شرارتیں کرتا تو میں ڈر جاتی، کیونکہ میرے ابو نے سختی سے منع کیا تھا کہ لڑکوں کو منہ نہیں لگانا۔ لیکن ایک دن اسے شرارت کرتے ہوئے ٹیچر نے دیکھ لیا تو میری جان ہی نکل گئی۔ عشق کس نمبر 7۔ علی کاور کے گھر کے ناشتے کی میز اس وقت سب کے ناشتے سے بھری ہوئی تھی۔ علی کاور کی ماں، جن کا نام مہرین تھا، وہ گرم گرم پراٹھے علی کاور کے سامنے رکھ رہی تھی۔ علی کی ماں مہرین کسی اچھے پرائیویٹ کالج میں انگلش کی ٹیچر تھی اور علی کاور کے بابا جو کہ آرمی میں تھے، جب وہ 12 سال کا تھا تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک مہرین صاحبہ نے علی کاور کو اپنے ہاتھوں میں بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا وہ بے حد خیال رکھتی تھی اور اس سے بے حد بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ علی کاور کے سامنے پراٹھے رکھنے کے بعد وہ خود بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر گرم گرم چائے علی کاور کے کپ میں ڈھیلنے لگی۔ یونیورسٹی نہیں جاؤ گے؟ آج اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، آج یونیورسٹی جانا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ دل تو کر رہا ہے جانے کا، مگر صبح پریکٹس کے لیے جانا ہے اور پھر آج میرا فٹ بال میچ بھی ہے، تو آج یونیورسٹی سے آف لے لیتا ہوں۔ آپ آ رہی ہیں نا میرے میچ میں؟ ہاں ہاں، تم بالکل بے فکر رہو، میں کالج سے جیسے ہی فری ہوگی میں خود آ جاؤں گی، اور میں پورے دل سے دعا کرتی ہوں کہ ہر بار کی طرح فٹ بال کی ٹرافی میرے بیٹے کی ٹیم کو ملے۔ آمین، تھینک یو سو مچ امی۔ مہرین صاحب نے بڑی نرمی سے علی کے ماتھے کو چوم کر پیار کیا۔ چلے میرا تو ناشتہ ہو گیا، میں جا کر چینج کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کالج چھوڑ دوں گا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ تمہارا پراٹھا رہتا ہے ابھی؟ بس امی، میں نے کھا لیا، مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ آپ صبح روانہ زن انڈا پراٹھا بنا کر کھلاتی ہیں، ایک دن آپ مجھے موٹا آلو کر دے گی؟ مہرین صاحبہ اپنے بیٹے کی بات پر ہنس پڑی۔ تم کوئی موٹے آلو نہیں ہو رہے ہو تو بہانے بنانا بند کرو اور اپنا ناشتہ کھاؤ۔ موٹا اس وجہ سے نہیں ہوں کہ کیونکہ ڈیلی جم کرتا ہوں، ورنہ آپ نے تو مجھے موٹا آلو کر دینا تھا۔ بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہو تم علی، مہرین صاحبہ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کی بات پر اسے ایک لمحے کے لیے فردوس یاد آئی تھی۔ اس نے کل کیسے فردوس کو بے حد تنگ کیا تھا۔ بار بار اس کی سبز آنکھوں میں ابھرتا ہوا غصہ اور اس کی گالوں کے غصے سے وہ سرخ ہو جانا اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، پھر آپ کو چھوڑ دوں گا کالج، وہ کہتا ہوں اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوئے مختلف موضوع پر اپنی ماں سے بات کرتا رہا تھا کہ اچانک اسے ایک بار پھر سے فردوس کا خیال آیا۔ امی، آپ کو ایک بات یاد ہے؟ آپ نے بچپن میں ہمارے پڑوس میں جو ایک بچی رہتی تھی اسے گڑیا لے کر دی تھی اس کی سالگرہ پر، اور آپ نے مجھے وہ گڑیا پیک کر کے دی تھی کہ میں اس کے گھر جاؤں تو دے دوں، کیونکہ اس کے پیرنٹس نے اس کی سالگرہ پر تمام بچوں کو بلایا تھا جو اس کے دوست تھے۔ ہاں، مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن تم نے اچانک اس گڑیا کے بارے میں آج کیوں بات کر رہے ہو؟ اور میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں؟ علی، تم کتنا روئے تھے اس گڑیا کے لیے کہ میں اس بچی کو وہ سبز آنکھوں والی گڑیا نہ دوں، تو تم نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ نہ جانے اس سبز آنکھوں والی گڑیا میں تمہیں ایسا کیا نظر آیا تھا کہ تم نے اس بچی کو وہ گڑیا اس کے تحفے میں دینے سے ہی نہیں دی تھی مجھے، پر میں نے ایمرجنسی میں اس بچی کو کچھ اور تحفہ دیا۔ میرین صاحبہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس کی شرارت سے اسے بتا رہی تھی۔ علی نے ماں کے بات پر آہستہ سے مسکرایا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے فردوس کی وہ سبز آنکھیں گھومنے لگی جن میں کبھی غصہ ہوتا تو کبھی اجنبیت تو کبھی ڈر، مگر ایک چیز جو ہمیشہ سے فردوس کی طرف متوجہ کرتی تھی وہ اس کی سبز آنکھیں تھیں۔ وہ اس کی سبز آنکھوں کو بے حد پسند کرتا تھا۔ سبز آنکھوں والی گڑیا مجھے ہمیشہ سے ہی پسند ہے امی، وہ ہنستے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جبکہ مہرین بھی بیٹھی اس کی بچپن کی یاد پر مسکرا رہی تھی۔ ویسے امی، اگر میں ابھی بھی آپ سے سبز آنکھوں والی گڑیا مانگوں گا تو آپ مجھے دے دیں گی؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مہرین صاحبہ نے علی کاور کو دیکھا۔ میرا مطلب اس گڑیا کی طرح بہت خوبصورت سی سبز آنکھوں والی گڑیا اگر آپ بیٹے کو مل جائے تو کیا آپ اسے حاصل کرنے میں میری مدد کریں گی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ صحیح طرح سے مجھے بتاؤ، کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ علی نے اور کچھ نہیں بولا، بس مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ علی، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ چلو میرے سوال کا جلدی سے جواب دو، کیا تم نے کسی کو پسند کرتے ہو؟ تم تو لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، تو پھر مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ تم مجھ سے اس طرح کی باتیں تو نہیں کرتے، تو پھر آج اس بات کا کیا مطلب؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ آپ کا کالج آ گیا امی، اور میں کوئی بات نہیں چھپا رہا آپ سے، علی کاور نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔
नहीं कुछ तो है, तुम मुझसे इस तरह की बातें करते तो नहीं हो जैसे आज कर रहे हो। कुछ बदले-बदले से लग रहे हो। आज तुम कुछ नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अपना ख्याल रखना और मैच में ज़रूर देखने आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ वो कह के गाड़ी से उतरने लगी। अम्मी अली ने बड़ी मान से अपनी माँ को पुकारा। हाँ बेटा वो इतनी मोहब्बत से मुड़ी। अम्मी आप मुझसे वादा करें जिस तरीके से बचपन में आपने मुझे वो सब्ज़ आँखों वाली गुड़िया दी थी, जिसे मैंने बहुत अरसे तक अपने पास संभाल के रखा था। उसी तरह से अभी भी जब मैं वो सब्ज़ आँखों वाली गुड़िया चाहूँगा तो आप उसे हासिल करने में मेरी मदद करेंगी। वादा करें मुझसे। अली ने अपनी माँ के आगे हाथ बढ़ाया। मरीन साहिबा ने एक नज़र अपने बेटे अली कावर को देखा और फिर नरमी से उसका माथा चूमा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें जिंदगी के सफर में वो सब्ज आंखों वाली गुड़िया मिलेगी। मेरे हाल में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी उसे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाने में। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, तुम मेरा वाहिद सरमाया हो। मेरी जिंदगी मेरी खुशी हो तुम अली। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। और अगर इस सब आंखों वाली गुड़िया को हासिल करना कभी तुम्हारे लिए मुश्किल हो तो बिला झिझक तुम अपनी माँ को आवाज दे देना। और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी है। उसकी माँ बाप के घर से वो सब्ज आंखों वाली गुड़िया जब भी तुम चाहोगे, अगर वो तुम्हारे नसीब में हुई तो तुम्हारे घर जरूर आएगी। सिर्फ मेरी बात इतनी समझ लो कि अगर वो तुम्हारे नसीब में हुई तो वो अपने बेटे को देखते हुए एक बहुत गहरी बात कहकर गाड़ी से उतर गई थी, जबकि अली यही सोचकर खुश हो गया था कि उसकी माँ उसका साथ देगी। यूनिवर्सिटी का माहौल वैसे ही था। नूर 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी आ गई थी, जबकि अली खाबर आज यूनिवर्सिटी नहीं आया था। उसका फुटबॉल का मैच था तो यासर भी वो देखने के लिए यूनिवर्सिटी से जल्दी जाने वाला था। कोई मसला तो नहीं हुआ फिरदौस? उन दिनों में जब मैं नहीं आ रही थी क्या हुआ? मुझे नोट्स कॉपी करने के लिए दे देना। यासर कह रहा था कि नोट्स मुझसे ले लो, मैंने तैयार रखे हैं। मगर तुम जानती हो कि उसकी राइटिंग डॉक्टर हैंड राइटिंग है, जो कि बड़ी मुश्किल से समझ आती है मुझे। तुम्हारी राइटिंग बहुत क्लियर है, लाओ अपने नोट्स मुझे दे दो। वो दोनों अभी कैंटीन में ही बैठी थी। यासर भी अपने चंद दोस्तों के साथ चलता हुआ आया और इन्हें ज्वाइन कर लिया। तुम अकेले आ रहे हो आज? अली ने आया नूर ने यासर को देखते हुए कहा, क्योंकि नूर ने अली को शुरुआत के 2 लेक्चर्स में नहीं देखा था। उसे लगा था कि वो शायद देर से आएगा। नहीं आज अली नहीं आएगा, उसका मैच है और तुम जानती हो कि वो कैप्टन है तो कैसे आ सकता है आज यूनिवर्सिटी? अरे वाह अली का मैच है, उसे मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक कह देना। वैसे तो मैं जानती हूँ कि वो जीत कर ही आएगा, मगर फिर भी तुम तो देखते जाओगे ना उसका मैच? नूर ने यासर को देखते हुए कहा। हाँ मैं और मेरे बाकी दोस्त आज में देखने के लिए जाएंगे उसका मैच। तुम्हें बता है पर दोस्त अली फुटबॉल में मास्टर है, मास्टर, और पढ़ाई में वो कितना अच्छा है तुम तो जानती हो। तुम्हारी नक नुक्कड़ का है बल्कि। सारे टीचर्स आपस में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि फिरदौस और अली के दरमियान में बराबर का कंपटीशन चलेगा। फिरदौस नूर की बात पर आहिस्ता से मुस्कुराई। तुमने कभी अली कावर को खेलते हुए नहीं देखा और ना ही उसका गाना सुना है। उसकी आवाज इतनी जबरदस्त है ना कि मैं क्या बताऊं। वो ग्रे रंग की जिसके सामने लड़की बैठी है उसका नाम शहनाज बख्तावर है। वो लड़की जिस दिन यूनिवर्सिटी आई थी उसके 2 दिन के बाद उसके बर्थडे थी और अली को तुम जानती कि वो खुश अखलाकी है। अली ने शहनाज बख्तावर को काफी अच्छे तरीके से गिटार पर पूरी तरह क्लास के सामने उसका बर्थडे विश किया था। और वो 2 दिन से और आज का दिन है। ये लड़की अली के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, यूं समझो कि फिदा है उस पर। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा। फिरदौस को चंद ही लम्हों में वो वाकया याद आया जब शहनाज ने उस सीढ़ियों पर रोककर अली खाबर के बारे में उसे मुख्तार किया था और उससे दूर रहने को कहा था, और साथ ही साथ ये भी जिताया था कि वो उसका बहुत खास दोस्त है। फिरदौस को एक ही लम्हे में वो सारी बात याद आ गई। वो खामोश बैठी हुई यासर और नूर की बातें सुन रही थी। यूनिवर्सिटी में उसे अचानक कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। वो लड़का जो बड़ी शरारत से हंसता खेलता अपने दोस्तों को लेकर कैंटीन में आता था, और जो लड़का क्लास की जान होता था, तमाम प्रोफेसर के सवालों का फौरन जवाब देने वाला और उसे बेहद परेशान करने वाला अली आज नहीं था। यूं लग रहा था जैसे एक अजीब सा सन्नाटा हो हर तरफ। फिरदौस नूर के साथ क्लास में आई और उसके साथ बैठ गई। उसकी नजर उसकी कुर्सी पर पड़ी जहां वो अली खाबर के साथ उस दिन बैठी थी, और अली खाबर ने उसे खूब तंग किया था। इतना कि सर ने भी उन दोनों को डांटा था और अली ने उसको सर ये कहकर दिया था कि वो पेन मांग रही है। उसे अली खाबर की एक बात याद आ रही थी जो वो उसके साथ बैठकर उसे तंग कर रहा था। फिरदौस ने तेजी से वहां से अपनी नजरें फेर ली और जल्दी से अपने नोट्स निकालने लगी। सर क्लास में आ चुके थे और क्लास शुरू हो गई थी। यूनिवर्सिटी का पूरा दिन गुजारने के बाद वो घर आ गई और मगरिब हुए थोड़ी ही देर थी वो अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ रही थी कि अचानक उसकी नजर एक तीनों
पेन पर पड़ी, जो अली एक एक करके उसे बार बार मांग कर उसे परेशान किया था। लम्हे भर के लिए उसे अली और उसकी तमाम बातें याद आई थी। वो उसे कैसे बार बार तंग कर रहा था, और तंग करने के बाद कितनी मासूमियत से सॉरी कह रहा था, जैसे कुछ किया ही ना हो, और कैसे उसने सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मेरे सर पर डाल दिया था। उसकी इन हरकतों को सोचकर फिरदौस को लबों पर एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट आई थी। पता नहीं क्यों, शायद वो लड़का पागल है, जिस बच्चों वाली हरकतें करता है। और वो अपना जहन उसके ख्यालों से झटकती हुई किताब का सफा आगे पलट कर पढ़ने लगी, और लम्हे भर में उसकी आंखों के सामने समा का चेहरा आया। वो किस तरह उसे परेशान कर रहा था, और कितना बदतमीज था, और कैसे उसने उसका पीछा किया था। और फिर आगे वो सोचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे समा पर बेहद गुस्सा आया था। और वो उससे आंखों वाला लड़का एक बार फिर से उसकी नजरों के आगे लहराया। अली ने कैसे समा से उसकी हिफाजत की थी, कैसे उसे पकड़कर जमीन पर फेंका था जब वो उसके करीब आ रहा था। और उस वक्त वो उसको मारते हुए कितना गुस्से में लग रहा था, जब वो समा को कह रहा था कि फासला रखो, और साथ ही साथ उसके मुझे कहा था कि मैं अकेले क्लास में ना जाऊं जब तक कि क्लास शुरू ना हो। वो पेन अपने होठों में दबाए अली खावर की तमाम बातें सोच रही थी। वो यही सोच रही थी कि राबिया दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, और उसने फिरदौस को आवाज दी, और राबिया ने एक बार फिर से फिरदौस को आवाज दी। वो कहीं और ही गुम थी, और अपनी माँ की दूसरी आवाज पर उसने चौंक कर अपनी माँ को देखा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। क्या कर रही हो बच्ची? दो आवाजें दे चुकी हूँ तुम्हें। सॉरी अम्मी, बस मैं थोड़ा पढ़ रही थी। आप बोले, क्या काम है? मैं कह रही हूँ कि यूसुफ साहब आए हैं, तुम भी आ जाओ, साथ में तुम्हारी दोस्त भी आई है, आमिर भी। अरे वाह, आमना ही है। वो जल्दी से अपनी किताबें साइड पर रखने लगी। हाँ जल्दी से आ जाओ, वो भी तुम्हारा पूछ रही है। हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी से अपने बाल पड़ने लगी। मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है। वो जल्दी जल्दी अपने बाल लपेटते हुए अपना दुपट्टा उठा रही थी। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बातों की एक लंबी लिस्ट होगी जो तुम्हें आमना से करनी है। अब जल्दी से आ जाओ, फिर कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद तुम उसे अपने कमरे में ले आना, और जितना दिल चाहे बात करती रहना। जल्दी से आ जाओ बाहर। वो अपनी माँ के साथ तेजी से कमरे में बाहर निकली, और ड्राइंग रूम में आई, जहाँ रजा के साथ वो तीनों बैठे हुए थे। और दूसरे यूसुफ साहब को हमेशा की तरह बहुत खुश इखलाकी से सलाम किया, उनकी खैर खैरियत पूछी। साथ उसने आमिर को भी सलाम किया, और तेजी से आमना के पास जाकर बैठ गई। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश थी। और बताओ फिरदौस, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है तुम्हारी? यूसुफ साहब ने फिरदौस देखते हुए कहा। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही है अंकल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अच्छा फिरदौस, मुझे नूर बता रही थी कि तुम लोगों को यूनिवर्सिटी वाले मरी ट्रिप पर जा रही हैं। तुमने मुझे नहीं बताया उन सब के बारे में। क्या तुम भी जा रही हो? आमिर ने कहा। हाँ, यूनिवर्सिटी में इस बात को लेकर काफी चर्चा है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। फिरदौस ने साफ इनकार किया, क्योंकि वो रज़ा के मिजाज को अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे यूनिवर्सिटी के साथ जाने की इजाजत तो बिल्कुल भी नहीं दे देगा। इसलिए उसने पहले ही मना कर दिया था, जबकि नूर, उसका कजन और बाकी के स्टूडेंट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। क्योंकि क्यों, तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हें क्यों मना कर दिया? यूनिवर्सिटी के साथ इतना मजा आएगा, मरी की ट्रिप है। आमना ने फिरदौस का बड़ी खुश दिली से कहा, जबकि फिरदौस रजा को देख कर रह गई, जिसकी सख्त आंखें और चेहरा उसके ऊपर ही जमा हुआ था। अब वो अगला जुमला क्या कहेगी? दूसरी तरफ राबिया ने भी बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। वो भी रजा के चेहरे पर सख्ती देखकर थी, मगर उन सबके साथ बैठने के लिए वजह से वो फिरदौस और नूर की कुछ नहीं कह पाई। आमना की बात पर रजा फिरदौस को देखकर रह रहा था, जबकि दूसरी तरफ राबिया और उसके चेहरे पर सख्ती देख रही थी। नहीं आमना, मुझे यूनिवर्सिटी के साथ मेरी ट्रिप पर जाने का कोई शौक नहीं, और वैसे भी कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इस चीज में। तो बेहतर है कि मैं अपना टाइम बचाकर अपनी स्टडीज पर तवज्जो दूं, क्योंकि पेपर स्क्रीब ही हैं। यूसुफ साहब उसे बड़े गौर से देख रहे थे। वो कभी राबिया को देखती तो कभी रजा को, तो कभी आमना को। यूसुफ साहब को यूं महसूस होने लगा जैसे वो रजा से डर रही हो। आमिर ने भी वहीं बैठे हुए ये चीज महसूस की थी, जबकि राबिया आमिर और यूसुफ साहब को देख रही थी। राबिया को ये डर था कि कहीं उन दोनों को शक ना हो जाए कि रजा और फरदौस के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। लम्हे भर के आमिर और यूसुफ साहब ने एक दूसरे को देखा। राबिया की समझ में अब बहुत कुछ आने लगा था। वो दोनों फिरदौस को देख रहे थे, जो कि बड़ी बेचैनी के साथ बैठी हुई थी, और रजा उसे देख रहा था। फिरदौस, ऐसा करो कि आमना को लेकर अपने कमरे में चली जाओ, वहां जाकर बात कर लेना। तुम दोनों की वजह से यूसुफ साहब और तुम्हारे बाबा बात नहीं कर पा रहे। चलो आज तुम दोनों मेरे साथ, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और उन दोनों को लेकर उठी फिरदौस के कमरे में जाने लगी। तो दूसरी तरफ फिरदौस ने भी सुकून का सांस लिया। फिरदौस, तुम मुझे बताओ, तुमने इतना अच्छा प्लान क्यों रिजेक्ट कर दिया? अच्छी खासी तुम्हारी पूरी यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो तुम सोच लो तुम क्यों नहीं जा सके। कितना मजा आता है। अगले महीने हमारी यूनिवर्सिटी वाले भी जा रहे हैं, और मैं तो लाजमी जाऊंगी उनके साथ। मैंने तो
एक महीना पहले ही अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली है और वो तो बड़े पुरजोश हैं। तुम्हें पता है अम्मी ने तो मेरे लिए 2 मोटी-मोटी शाल भी ले ली हैं। मगर हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो बड़ी खुशदिली से फिरदौस को बता रही थी। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम खूब एंजॉय करना, फिरदौस ने खुशदिली से कहा। मगर फिरदौस, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम तो इन पहाड़ बर्फ की बारिश की दीवानी हो और ये तो तुम्हारे पास बड़ा अच्छा मौका है, तो तुमने क्यों जाने से इनकार कर दिया? कितने सारे लोग गए, कितना मजा आएगा और कितनी सारी पर जाओगे तुम, इतने सारे टीचर्स होंगे, प्रोफेसर होंगे, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, डरने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं नहीं आमना, बस मेरा दिल नहीं है जाने का। इसलिए तुम्हें याद है कि जब हम एक दिन कॉलेज के कैंटीन में फ्री बैठे हुए थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें मरी जाने का बहुत शौक है। अब तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम जा नहीं रही। तुम्हें इतनी पुरानी बात याद है? फिरदौस आमना की बात पर बेबसी से मुस्कुराई। हाँ, ये बात सच है कि मुझे ये बहुत सब कुछ पसंद है, बारिश, पहाड़, सर्दी, झील। फिर वो एक लम्हे के लिए रुक गई। लम्हे भर के लिए उसकी आंखों के सामने रजा का सख्त चेहरा आया और उसकी आंखों में मौजूद बेतहाशा गुस्सा। नहीं, बस मेरा दिल नहीं है जाने को, फिरदौस ने मना कर दिया। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जिस तरह तुम्हें ठीक लगे। यूसुफ साहब और उनके दोनों बच्चे कुछ देर वहां बैठने के बाद अब अपनी गाड़ी में वापस घर जा रहे थे, जबकि अमर किसी गहरी सोच में था। यूसुफ साहब ने भी बार बार आमिर का चेहरा देख रहे थे। क्या हुआ फिरदौस, जा रही है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ? आमिर ने अचानक आमना को देखते हुए कहा। नहीं भाई, उसने तो साफ इनकार कर दिया है कि जब वो उन तमाम चीजों को दीवानी है, मरी जैसी जगह वो कैसे छोड़ सकती है? उसे ये पहाड़, पौधे, बर्फ, समंदर, बर्फ, बारी बारिश सब बहुत पसंद है। वो खुद कहती थी कि अगर उसे कभी मौका मिलेगा तो वो जरूर जाएगी। अब मौका मिल रहा है तो जा नहीं रही। कहती है कि घर में रहकर पेपर्स की तैयारी करेंगे, जबकि वो तो पढ़ने में काफी अच्छी है। उसको कौन सी मुश्किलात पेश आएगी? आमिर ने एक लम्हे के लिए यूसुफ साहब को देखा। वो समझ रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा है, मगर उन्होंने आमना के सामने कोई बात नहीं की। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकी तो आमना उतरी और अंदर चली गई, जबकि आमिर और यूसुफ साहब कुछ बात करते हुए आहिस्ता से चल रहे थे। मेरे दिमाग में फिरदौस को लेकर एक बात है बाबा, आमिर ने यूसुफ साहब को देखते हुए कहा। हाँ बोलो फिरदौस के बाबा, मुझे बहुत सख्त लगते हैं। मैंने ये चीज बचपन से महसूस की है कि वो उनसे बहुत डरती है। बेशक वो उसे डांट सकते हैं, उसके ऊपर पूरा इख्तियार रखते हैं, मगर वो इस पर गुस्सा तब करे जब उसकी कोई गलती हो या फिर उसने कोई ऐसा काम किया जो अच्छा ना हो। मगर बाबा, मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी बेटी इतनी परफेक्ट है, फिर क्यों उस पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और उस पर पाबंदियां लगाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे वो फिरदौस से बेजार हो। यूसुफ साहब ने आमिर की बात पर बड़ी बेचैनी से पहलू बदला। यूसुफ साहब आमिर को क्या बताते कि रजा और उसके चेहरे के तासरात का वो एक अधूरापन और उसकी औलाद में बेटा ना होना उसे किसी हद तक ये बात चुपती थी कि उसकी सिर्फ बेटी है। लोगों के बेटों को देखकर कैसे उसका मुंह बन जाता था। मगर यूसुफ साहब आमिर के ये सब कुछ बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहते थे, जबकि रजा को लाख छुपाने के बावजूद भी यूसुफ साहब समझ चुके थे कि रजा का मजाज अच्छा ऐसा क्यों है। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जरूरत कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। फिरदौस ने बड़ी अच्छी बच्ची है और देखो वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, तो हो सकता है कि वो ना जाना चाह रही हो इतनी दूर अकेले। बाबा, अकेली नहीं है वो, पूरी यूनिवर्सिटी होगी उसके साथ। हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर हो सकता है कि फिरदौस की अपनी ही कोई मजबूरी हो जो वो नहीं जाना चाह रही हो। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये रजा और उसके घर वालों का मामला है बेटा। आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, हो सकता है कि रजा इख्तियार कर रहा हो अपनी बेटी के लिए। अमर ने यूसुफ साहब को एक नजर देखा और फिर ठीक है कहता हुआ अंदर चला गया, जबकि यूसुफ साहब अमर की बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहा है, मगर उन्होंने अपनी तरफ से बात बता दी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का माहौल वैसे ही था, मसरूफ, हर तरफ स्टूडेंट की चहल पहल थी। ऐसे में फिरदौस और बाकी के स्टूडेंट अपने लेने के बाद अब क्लास से निकल रहे थे। जारी है।